Hello everyone, welcome back to Walk with Jesus. So today we are going to talk about one of the most important life-changing topic, how to walk with Jesus every single day. Let me ask you, have you ever felt like Jesus is far away? You pray, you go to church, you read the Bible sometime, but deep inside you feel something is missing, like your daily life and your spiritual life are separate. Well, that's good news. Well, the good news is Jesus never meant for his presence to be just a Sunday thing. He wants you to walk with you daily, every hour, every moment. And today I want to share you the four powerful pillars of walking with Jesus every day. So it's mean कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब करते हैं, बट स्टिल वी फील सो लोनली कि नहीं, कि कहीं ऐसा, कहीं कुछ तो कमी है, या हमें ऐसा लगता है जीसस हमें छोड़ दिए, हमारे साथ नहीं, हमसे प्यार नहीं करते. बट ऐसा नहीं है. ही इज़ ऑलवेज देयर विथ अस. वो हमेशा हमारे साथ है जब हम उनको याद करें. और आज हम देखेंगे वो कौन से 4 पावरफुल पिलर्स है जो जीसस हमें चाहता है कि हम उसको रोज करें. सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड ऑफ द गॉड. Micaiah chapter 6 verse 8 says, "What does the Lord require for of you to act justly, to love mercy and walk humbly with God?" This is God's heart. He desires us to walk with Him. Walking means relationship, closeness, and moments together. John chapter 15, verse 4 and 5 remind us, "Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruits of itself you unless it abide in the vine. Neither can you unless you abide in me." So today, let us understand how to abide, how to remain, how to walk with Him every day. Means परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. जैसे एक ब्रांच दूसरे से कनेक्ट रहता है तभी वो ग्रो करता है, वैसे हम परमेश्वर से कनेक्टेड है क्योंकि हम परमेश्वर से बनाए हुए हैं. इसीलिए हमको उसके साथ रह के उसमें ग्रो करना है. अगर हम परमेश्वर में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है. ये परमेश्वर का वादा है. पहला पिलर है, द फर्स्ट पिलर इज प्रेयर, talking and listening to God. The first pillar is prayer. Prayer is not a ritual. It's not a ritual. It's a relationship. Imagine having a best friend, but you never speaking to them. Would their relationship survive? No. In the same way, our walk with Jesus required daily communication. Means कि जो परमेश्वर है, जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, एक कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसा ये वो, तो अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड आया है या हम बात नहीं कर रहे तो इट्स लाइक वर्थलेस. तो परमेश्वर भी हमारे एक दोस्त है. तो हमें प्रेयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन. बट प्रेयर इज नॉट ओनली टॉकिंग, इट्स ऑल्सो लिसनिंग. मैनी पीपल प्रे लाइक शॉपिंग लिस्ट. Lord, give me this. Lord, fix that. But prayer is a conversation. Like, begin your prayer in the morning. Surrender prayer. Lord, this day belongs to you. Like, you can say a short prayer. So, thank you, Jesus. Guide me, the Holy Spirit. Night reflections. Like, in the night, you can say, Lord, where did I walk with you today? And where did I walk away? Tell me everything. Daniel prayed 3 times a day and he changed nations. Jesus himself prayed early in the morning if he needed it. How much do we? Just imagine. So, what we have to do, सबसे पहला चीज़ जो हमें करना है वो ये करना है कि
जो पहला पिलर है जीसस से पास होने का वो प्रेयर है. प्रेयर शुड बी लाइक कन्वर्सेशन, लाइक यू आर टॉकिंग टू योर बेस्ट फ्रेंड. जैसे हम सब लोग कैसे अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, हमारे रिलेटिव से बात करते हैं, तो हमें वैसे बात करना है परमेश्वर से. और दूसरा चीज़, परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है, परमेश्वर, क्योंकि हमारा जो प्रेयर वो होना चाहिए, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल होना चाहिए. ऐसे नहीं कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, ओ हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ओ हमको ये भी दिला दो, अच्छा ये सब प्रॉब्लम हो गया, वैसा हो गया. नहीं, आप परमेश्वर से पहले प्रेम करिए, परमेश्वर के साथ रहिए. जब परमेश्वर से आप बात करेंगे तो आपको क्या करना है, कन्वर्सेशन में एक बोलता है एक सुनता है, फिर एक बोलता है दूसरा सुनता है. ये हमारा मीडियम है कन्वर्सेशन का. तो हमें जो हम बोले परमेश्वर हमारा सुनता है, और जब परमेश्वर बोले तो हमें सुनना है. सो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो कहता है सिलेंडर. सबसे पहले उठ के परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर टुडे आई सिलेंडर दिस डे. आज का दिन मैं तुझे चढ़ाती हूँ परमेश्वर. तू हमसे प्रेम करता है. दिन में शॉर्ट प्रेयर बोलिए जब खा रहे या दिन में कभी भी, थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग. और कभी कोई परेशानी हो को आप बोलिए गॉड गाइड मी. रात में सोते समय परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे बता मैं किस आज के दिन कौन से राह पर तेरे नहीं चली हूँ, कौन से राह पर चली हूँ, मुझे गाइड कर. ये पहला चीज़ है. जैसे कि डैनियल 3 टाइम प्रेयर करता था वो, और उसने पूरे नेशन को बदल दिया. इवन जीसस मॉर्निंग में प्रेयर करते थे. तो जस्ट इमेजिन कि हमको प्रेयर की कितना ज़रूरत है. सो इसका पिलर नंबर 2 क्या है वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे. टिल देन जय मसीह की. परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको गाइड करे कि उनको कि आप लोग को क्या करना है, कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, कितना साथ रहता है हमारे. So let's pray a small prayer. Lord, thank you for everything. Lord, guide us every day. Tell us how to pray. We don't know how to pray. We want to say thank you for everything. Thank you for the love. Thank you for the care. Thank you, Jesus, for everything. Lord, thank you. Praise the Lord. May the God Jesus will be with you wherever you go.